Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about the fetal skull and their diameter. Very important class. So देखो, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द डायमीटर हम थोड़ा सा fetal skull के बारे में देख लेते हैं. So first of all you have to remember that is we have two fontanelles. So that is the anterior fontanelles and the another one is the posterior fontanelle. So as the name suggests, it is anterior. So anterior fontanelles is in between our frontal sutures, coronal sutures and the sagittal sutures. ठीक है ना? And it is कौन सा shape है? Very important, diamond shape. So anterior fontanelles or bregma, also known as bregma, is the diamond shape. ठीक है. Coming to the posterior, that is in between our sagittal suture and lambdoid suture. ठीक है ना? So that is the कौन सा shape है? That is our triangular shape में है. So posterior fontanelles is also known as lambda and ये कौन सा shape होता है? Triangular shape में होता है. Then we have 6 sutures. That is, first one is the frontal suture between two frontal bones. Then 2 coronal suture between the frontal and the parietal bone. Then between the two parietal bone have one suture, that is the sagittal suture. So frontal suture, 2 coronal suture, 1 sagittal suture, and then in posterior side में हमारे पास एक और sutures है, that is lambdoid suture between the parietal and the occipital bone. So that is simple thing that you already know. ठीक है. Coming to the diameter, very important and very confusing, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं. So देखो, सबसे पहला हमारा 2 तरीके का डायमीटर है. फर्स्ट वन इज द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्स डायमीटर. देखो, ये बेबी का हेड है. ये एक तो डायमीटर होगा जो एंटीरो पोस्टीरियर होगा, एक डायमीटर कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा. तो एंटीरो पोस्टीरियर में कौन कौन सा डायमीटर है? ये सारा हमारा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है. हम ये अलग अलग डायमीटर्स क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब हम बेबी का जब डिलीवरी पढ़ेंगे, हमने फिटल स्कल, हमने पेल्विक पढ़ा, देन बेबी जब डिलीवर होगा, देन कौन से पोजीशन में बेबी डिलीवर हो रहा है, कौन सा डायमीटर पहले आएगा, एंड इट विल टेल कि वेदर द वजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर. ठीक है. सो फर्स्ट हमारा है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर. सो एज द नेम सजेस्ट, सब ऑक्सीपिटो. सो सब ऑक्सीपिटो मतलब कि इट इज फ्रॉम द ब्रेगमा. दिस इज द ब्रेगमा, राइट? So from the bregma, you can see very well, this is our anterior fontanelles. So from the bregma to the nape of the neck, ये जो पीछे है ना, nape of the neck. So that is the suboccipitobregmatic diameter, that is around 9.5 centimeter. Second हमारा है this one, that is our suboccipitofrontal. So from the frontal bone, from the frontal to the nape of the neck, that is the suboccipitofrontal diameter, that is around 10 to 10.5 centimeter का होता है ये. ठीक है. Then third हमारा है, that is from occiput. So occiput to nape of the neck. So that is the occipitofrontal, है ना, from the frontal to this nape of neck. So occipitofrontal diameter, that is around 11.5. सबसे बड़ा सा डायमीटर दिख रहा होगा, है ना. And then we have mentovertical diameter. See, from the mentum, this is the mentum, from mentum to the vertex, है ना, from mentum to the highest point on the sagittal. This is the sagittal, so highest point on sagittal. So that is the mentovertical, and this is the largest diameter, very important, around 14 centimeter. ठीक है. Then fifth we have submentovertical diameter. Submentovertical मतलब कि below the chin, chin के below to highest point on sagittal, and that is around 11.5 centimeter. Then we have submentobregmatic diameter from below chin to the bregma, to till this one, है ना, to bregma. ठीक है. So that is around 9.5 centimeter. So हमारा suboccipitobregmatic diameter and submentobregmatic diameter is same. Submentovertical diameter and occipitofrontal diameter are same, and the longest diameter कौन सा है? That is mentovertical diameter. Very important. mentovertical diameter मतलब कि vaginal delivery बहुत difficult होगा, हम आगे देखेंगे. ठीक है. Coming to some transverse diameter. So this is transverse, right? This is the transverse, है ना, ये हमारा transverse diameter होगा. So transverse diameter में कौन कौन सा है? That is
फर्स्ट हमारा है बाईपराइटल। देखो बाईपराइटल डायमीटर, दिस इज द बाईपराइटल डायमीटर फ्रॉम द, ये जो पराइटल एमिनेंस है ना, ये बिटवीन टू पराइटल एमिनेंस। देन सुपर सब पराइटल डायमीटर, तो सुपर सब पराइटल डायमीटर क्या होता है, वन बिलो द पराइटल एमिनेंस एंड ऑपोजिट साइड में क्या है, अबव द पराइटल एमिनेंस, सो दैट इज द सुपर सब पराइटल diameter, that is around 8.5 centimeter. Then we have bitemporal diameter and bimastoid diameter. So आपको कैसे याद करना है, you have to remember by the mnemonic Miss Tina So Pretty. So Miss मतलब bimastoid diameter 7.5, increasing order में याद करना है. Tina is bitemporal diameter 8 centimeter. So super subparietal diameter 8.5 centimeter and Pretty biparietal diameter, that is around 9.5 सेंटीमीटर। एंड यू कैन सी वेरी वेल कि जितने भी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर था, दीज आर मोर देन आर ट्रांसवर्स डायमीटर, राइट, ठीक है। कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द दिस स्लाइड। बेसिकली यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एंड ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू रिमेंबर दिस स्लाइड्स, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। सो फर्स्ट हमारा है वर्टेक्स। लेट्स सपोज बेबी डिलीवर हो रहा है एंड द प्रेजेंटेशन क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन लाइक क्या होता है वो आपको मैं लिवर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। सो वर्टेक्स, अगर बेबी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है मतलब कि पार्ट ऑफ स्कल लाइंग बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनल्स टू पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। सो कितना बेबी का कितना हेड दिखेगा हमें, फ्रॉम एंटीरियर फॉन्टेनल्स से पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, ये पार्ट बेबी का बेसिकली दिखेगा। फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट ये बेबी का विजिबल होगा, है ना। सो दैट इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सो दो कंडीशन हो सकता है, अगर बेबी फुल्ली फ्लेक्स्ड है, अगर बेबी फुल्ली फ्लेक्स्ड है लाइक दैट, अगर बेबी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, दिस इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, एंड बेबी अगर फुल्ली फ्लेक्स्ड है या फिर थोड़ा सा कम फ्लेक्स्ड है, सो फुल्ली फ्लेक्स या फिर पार्शियली फ्लेक्स्ड है। सो इन दैट कंडीशन इफ बेबी इज फुल्ली फ्लेक्स और पार्शियली फ्लेक्स, इन दैट कंडीशन कौन सा डायमीटर इंगेज होगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंगेजिंग डायमीटर इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर इंगेज होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, दिस डायमीटर गेट इंगेज एंड ये कितना है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना सर। 9.5 सेंटीमीटर का है, वजाइनल डिलीवरी कैन बी पॉसिबल। या फिर अगर बेबी पार्शियली, अगर बेबी डी फ्लेक्स्ड है, अगर फुल्ली फ्लेक्स या फिर पार्शियली फ्लेक्स है, इंगेजिंग डायमीटर क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। बट अगर बेबी डी फ्लेक्स्ड है, इन डी फ्लेक्स कंडीशन में इंगेजिंग डायमीटर क्या होगा, या तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो सकता है या फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल होगा। सो ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर का है एंड सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना है, 10 to 10.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हो सकता है ब्रो प्रेजेंटेशन। सो ब्रो में क्या होगा, पार्ट ऑफ स्कल बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनल्स टू रूट ऑफ नोज and supraorbital ridges. This is the image you can see. This is the bro presentation. यहाँ पे आपको anterior fontanelle से root of nose and supraorbital ridges basically आपको बाहर दिखेगा। And in that condition, engaging diameter अगर baby अगर कब होगा ये ब्रो प्रेजेंटेशन बेसिकली कब होता है, इन केस ऑफ हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड। अगर हेड अगर फुल्ली एक्सटेंडेड है तो ऑफ कोर्स कौन सा होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होगा। बट अगर हेड पार्शियली एक्सटेंडेड है देन इट इज ब्रो प्रेजेंटेशन एंड जो इंगेजिंग डायमीटर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज मेंटो वर्टिकल डायमीटर। एंड हमने देखा था सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा था, दैट इज मेंटो वर्टिकल डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। एंड इन दैट कंडीशन वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। एंड जब भी अगर मेंटो वर्टिकल डायमीटर इंगेज्ड होगा देन ऑलवेज इंडिकेशन इज cesarean section. So one indication for cesarean section is if the engaging diameter is mentovertical or if the baby's head is partially extended. In bro presentation, if the baby's head is partially extended, then the delivery mode is cesarean section. ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि बेबी का फेस प्रेजेंटेशन हो। If the face presentation होगा then कौन कौन सा पार्ट विजिबल होगा, that is part of skull between root of nose and supraorbital ridge to chin till mentum, है ना। ये पूरा पार्ट, पूरा फेस बेसिकली बाहर रहेगा, पूरा सुपर
वो एक्सटेंडेड है ना, पूरा हेड इज एक्सटेंडेड, प्रॉपर्ली एक्सटेंडेड है, तो पूरा का पूरा फेस इंगेजिंग होगा ना। सो इंगेजिंग डायमीटर क्या होगा, सब मेंटो ब्रेगमेटिक, सब मेंटो ब्रेगमेटिक और सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इंगेज होगा। सो दिस इंगेजिंग डायमीटर यू शुड रिमेम्बर वेरी वेल। आपको हो सकता है आपको ये इमेज दे दे प्रो प्रेजेंटेशन वाला, एंड दे विल आस्क कि इसमें कौन सा इंगेजिंग डायमीटर होगा, है ना। सो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द फुल्ली फ्लेक्स, ये बेबी कैसे है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है, ये थोड़ा सा डी फ्लेक्स्ड है, ये थोड़ा डी फ्लेक्स्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे बेबी क्या है, दैट इज पार्शियली एक्सटेंडेड है, पार्शियली एक्सटेंडेड है। यू कैन सी पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट डायमीटर है ना, 13.5 लिख रखा, बट यू कैन अंडरस्टैंड 14 सेंटीमीटर होगा, पूरा का पूरा लार्जेस्ट डायमीटर इंगेज्ड होगा। एंड व्हेन दैट इज एक्सटेंडेड होगा, यहाँ पे पार्शियली एक्सटेंडेड है, यहाँ पे फुल एक्सटेंडेड है ना। तो ये पूरा फेस प्रेजेंटेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज दैट कैन बी आस्क इन द एग्जाम, कि आपको बेबी दे देगा एंड दे विल आस्क कि यहाँ पे इंगेजिंग डायमीटर क्या है। सो दिस इज डी फ्लेक्स, तो यहाँ पे इंगेजिंग डायमीटर क्या होगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मोल्डिंग। सो मोल्डिंग क्या होता है, प्लीज ये वाला जो स्लाइड है इसको आप 2-3 बार चीजें देखो आप। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक कहाँ पे है, इंगेजिंग डायमीटर इन केस ऑफ वर्टेक्स, इन केस ऑफ ब्रो, इन केस ऑफ फेस प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग इज द ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स ड्यूरिंग लेबर ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो जब बेबी डिलीवर होता है ना, सो द यू नो कि बेबी का हमने सूचर्स स्टार्टिंग में पढ़ा, सो ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सूचर्स बेबी का जो हेड है, बेबी का जो फीटल स्कल्स है, वो क्या होता है एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, सो दैट जो पेल्विक में जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली बेबी इजिली डिलीवर हो सके। सो बिकॉज ऑफ दैट बेबी का जो स्कल है वो ओवरलैप करती है, एंड दैट इज द नॉर्मल फिनोमिना। बट एवरीथिंग इज नॉट मोर, एवरीथिंग बियॉन्ड दैट इज एबनॉर्मल, एंड उससे अगर कम होगा तो भी एबनॉर्मल होगा। सब कुछ एक प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए। तो मोल्डिंग भी एक अगर प्रॉपर वे में है तो सही है, अगर उससे ज्यादा मोल्डिंग हो रही है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। सो overlapping of fetal skull bones during labor due to pressure from the birth canal is known as molding, ठीक है ना। So it helps the fetal head adapt to maternal pelvis and facilitate the vaginal delivery, ठीक है ना। So we have 3 grading, grade 1, grade 2 and grade 3. So grade 1 में क्या होगा, bone touch but not overlap. So bone touch करेगी एक दूसरे को बट ओवरलैप नहीं करेगी। सो दैट इज द ग्रेड 1 एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 का मतलब है कि यहाँ पे बोन सिर्फ टच नहीं करेगी, ओवरलैप भी करेगी। बट ओवरलैप तो करेगी बट इट इज इजिली रिड्यूसिबल, इजिली रिड्यूसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरलैपिंग बट इजिली सेपरेटेड विथ जेंटल प्रेशर, देन द ग्रेड इज +2। +3 मतलब कि सिवियरली ओवरलैप करेगा एंड इट इज नॉट रिड्यूसिबल, देन इट इज +3 ग्रेड। सो सिवियरली overlapping and can't be separated, then the grade is +3. And if there is +2 or +3, it indicates CPT, the most importantly +3. If there is +3, it means it indicates cephalopelvic disproportion. It means pelvis is not proportion to the fetal head, ठीक है ना। So that is the cephalopelvic disproportion। मैंने आपको pelvic वाले चैप्टर में बहुत इजीली में बताया था। In cephalopelvic disproportion, pelvic is normal. It is not like that कि जो pelvis है वो contracted है and all. Pelvis is normal. Everything is that कि babies का जो head है that is large according to that pelvis. Okay, so that is very very important. So it indicates CPD or obstructed labor. That is the molding. So molding आपको पता होना चाहिए, and this is the diameter, this is the image. Basically they will give the image and ask कि इंगेजिंग डायमीटर यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू पीपल, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।